السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. ناظرین، سندھ میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات، روزانہ درجنوں افراد جن میں بچے، بڑے، بوڑھے، ہر عمر کے افراد شامل ہیں. ویکسین کی عدم دستیابی کے باعث متاثرہ افراد کو علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آوارہ کتوں کے خلاف کئی بار آواز اٹھائی گئی اور انتظامیہ کی جانب سے آوارہ کتوں کے خاتمے کی بارہا یقین دہانی بھی کرائی گئی، لیکن کوئی مہم نہیں چلائی جا سکی. سندھ حکومت نے کتا مار مہم کے بجائے کتوں کو ٹیکے لگانا شروع کر دیے اور ہم نے دیکھا کہ یہ مہم بھی کراچی کے چند علاقوں میں محض کچھ روز تک چلتی دکھائی دی اور پھر اس کے بعد ہر طرف آوارہ کتوں کی بھرمار ہے. کتوں کے کاٹنے کے باعث اندرون سندھ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، جہاں عوام ویکسین کی تلاش میں دھکے کھانے کے بعد کراچی کے اسپتالوں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 15 سے 18 لاکھ ویکسین کی مانگ ہے، جبکہ 5 سے 7 لاکھ کے قریب ویکسین پاکستان پہنچ رہی ہیں. ویکسین کی کمی کی اہم وجہ حکومت کی جانب سے مناسب پالیسی کا نہ ہونا ہے. ریبیز ایک مہلک بیماری ہے جو دودھ پلانے والے جانوروں جن میں کتا، بلی، چمگادڑ، لومڑی اور گیدڑ سمیت دیگر جانوروں کے کاٹنے سے انسان میں پھیلتی ہے. صوبہ سندھ میں سال 2019 اور رواں سال ملا کر 2 لاکھ سے زائد افراد آوارہ کتوں کا نشانہ بن چکے ہیں، جبکہ بیشتر پاگل کتوں کے کاٹنے سے ریبیز میں مبتلا ہو چکے ہیں. 22 افراد جان کی بازی ہار چکے، جن میں لاڑکانہ کا معصوم حسنین اور 1 ماہ کی گود میں سسک کر جان دینے والا بچہ بھی شامل ہے. صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی دعوے دار سندھ حکومت سرکاری ہسپتالوں کو اینٹی ریبیز ویکسین فراہم کرنے میں اب بھی ناکام ہے. جناح اور انڈس ہسپتال میں ویکسین موجود، لیکن وائلز کی تعداد شرمناک حد تک کم ہے، جس کے باعث متاثرہ افراد در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور رہتے ہیں. کراچی سمیت سندھ بھر کی گلیوں، سڑکوں اور محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ہے، جن کے خاتمے یا کسی بھی متبادل عمل میں بلدیاتی ادارے سمیت محکمہ صحت کی مجرمانہ غفلت بھی شامل ہے. صورتحال کتنی سنگین ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شکارپور میں 24 گھنٹے کے دوران کتے کے کاٹنے کے 40 کیسز رپورٹ ہوئے. رواں ہفتے سول اسپتال میں 350 افراد کو لایا گیا. کیا صورتحال، یہ جانیں گے اپنے نمائندے امجد حسین سے. امجد حسین، سرگزیدگی یعنی کتے کے کاٹنے کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور انتظامیہ صرف نظر کر رہی ہے، کیا صورتحال ہے بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ شکارپور کی اگر ہم بات کریں، آج ڈسٹرکٹ شکارپور کے سول ہاسپٹل میں 40 ایسے کیسز آئے ہیں جن کو مختلف شکارپور ضلع کے علاقوں میں کتوں نے کاٹا تھا، ان کی یہاں پر ویکسین کی گئی ہے. اس حوالے سے آج نیوز نے مسلسل کوریج کی تھی. اس کے بعد سکھر کی ہائی کورٹ کی بینچ نے اس پر نوٹس لیا تھا اور ہدایتیں کی تھی کہ جس بھی علاقے میں اگر کسی کو کتا کاٹتا ہے تو اس علاقے کے یو سی سیکریٹری یا ٹاؤن آفیسر یا میونسپل کمیٹی کے آفیسر پر مقدمہ درج کیا جائے. اس پر یہاں پر عمل درآمد بھی کیا گیا. اب تک اگر ہم بات کریں شکارپور ڈسٹرکٹ میں 18 سے 20 ایسے مقدمے درج ہوئے ہیں کتے کاٹنے کے مختلف تھانوں پر. اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک کسی بھی ایریے میں کتا مار مہم شروع نہیں کی گئی ہے، کیونکہ اگر کتا مار مہم شروع کی جائے گی تو کتوں میں کمی آئے گی، لیکن یہاں پر دن پر دن کتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کو یہاں پر مارنے کا کام شروع کیا گیا ہے نہ ان کو پکڑنے کا کام شروع کیا، تو اس وجہ سے بہت زیادہ یہاا پر کیسز سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم پورے ہفتے کی بات کریں تو پورے ہفتے میں جو سول ہاسپٹل کی رپورٹ ہے وہاں پر تقریباً کوئی 350 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو کتوں نے کاٹا ہے اور یہاں پر ان کی ویکسین کی ہے سول اسپتال میں. اور اسی طرح یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے جتنی بھی این جی اوز کے انڈر میں سینٹر آ رہے ہیں یا یہاں پر رورل ہیلتھ سینٹر ہیں یا رستم میں گڑی یاسین ہیں اور دوسرے سینٹر ہیں، تقریباً کوئی 35 کے قریب یہاں شکارپور میں سینٹر ہیں جو مختلف این جی اوز کے انڈر میں ہیں. وہاں پر کہیں بھی کتے کی ویکسین موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد جو یہاں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے میر عابد حسین بھائی، انہوں نے سختی سے نوٹس لیا تھا اور سول اسپتال پر یہ اویلیبل کروائی تھی میڈیسن ویکسین جو ابھی تک یہاں پر موجود ہے. اور سول اسپتال شکارپور میں صرف ویکسین مل رہی ہے اور کسی بھی سینٹر میں جو ہے وہ ویکسین موجود نہیں ہے ضلع شکارپور کی. یہ بہت بڑے المیہ ہیں. اور دوسرا میر عابد بھائیوں نے ڈپٹی کمشنر کو سختی سے ہدایتیں کی ہیں کہ فوری طور پر
पूरे जिले में कुत्ता मार मुहिम चलाई जाए। अगर नहीं चलाई जा रही, जो इसमें गफलत बरत रहा है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। तो शिकारपुर जिले की सूरत हाल ये है कि अभी तक कुत्ता मार मुहिम नहीं शुरू की गई, जिसकी वजह से आए रोज कुत्ते काटने के वाकये हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत परेशान है। शुक्रिया अमजद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे शिकारपुर से। और अब रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहां सिविल अस्पताल में आज 19 अफराद को एंटी रेबीज की वैक्सीन लगाई गई। मीरपुर खास में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक से। अपडेट कीजिएगा मोहम्मद सिद्दीक। जी, हम इस वक्त मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल के अंदर हैं और यहाँ पर सख्तगजीदगी के हवाले से जब हमने जानना चाहा कि यहाँ पर कितने जो है वाकयात हुए हैं आज के दिन, तो हमने जो यहाँ का रिकॉर्ड मालूम करना चाहा है तो हमें मालूम हुआ है कि तकरीबन आज के दिन में ओल्ड और न्यू पेशेंट्स को मिलाकर तकरीबन 19 अफराद को जो है वो जो है अपना राइबीज की वैक्सीन लगाई गई है। इसके अलावा जो है आज के अलावा जो है रोजाना की बुनियाद पर सख्तगजीदगी के मीरपुर खास शहर में वाकयात का होना मामूल बन चुका है और इसके हवाले से किसी किस्म का भी जो है इंतजामिया की जानिब से सद्देबाब नहीं किया जा रहा। खुसूसन मीरपुर खास शहर में जो है अगर देखा जाए तो इसकी असल जो वजह है वो बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्दिया की जानिब से जो है इसका सद्देबाब किया जाता है, कुत्ता मार मुहिम चलाई जाती है जो कि अभी तक जो है नहीं चलाई गई है, जिसकी वजह से जा बजा जो है हम देख रहे हैं कि खुसूसन जो कचरा वगैरह पड़ा होता है शहर में जा बजा, उस कचरे पर कुत्ते खड़े हुए होते हैं जो वहाँ जो गिलाजत वगैरह होती है उसको खा रहे होते हैं और कोई शख्स अगर वहाँ पर अपना कचरा फेंकने आ जाता है तो फिर वो उसको काटते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह के खास वाकयात जो है रोनुमा हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि इसके सद्देबाब के लिए इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है। बुनियादी बात तो ये कि शहर के अंदर कुत्तों की बहुतात है और आवारा खारिजदा कुत्ते जो हैं बहुत ज्यादा शहर में घूम रहे हैं, खुलेआम दंदना रहे हैं। बिलखुसूस खवातीन और हमारे जो मासूम बच्चे होते हैं गली मोहल्लों में जो खेल रहे होते हैं उन पर हमलावर होते हैं और बिलाखिर जो है ना उन्हें जो है वो काटने के बाद जो है ना सिविल हॉस्पिटल की तरफ यानी कि भेजा जाता है। और आज हमने देखा यहाँ पर कि तकरीबन 20 के करीब जो है वो ऐसे यानी कि अफराद के जिन्हें कुत्तों ने काटा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहर के, उन्हें जो है यहाँ पर लाया गया जिन्हें वैक्सीन की गई है। बुनियादी बात यह कि कुत्ते मौजूद हैं शहर में और इस तरह की अपने कुत्ते जो ना हमलावर हो रहे हैं आवाम के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो इन चीजों का सद्देबाब होना चाहिए। वैक्सीन होना मसला नहीं है, मतलब कि ये वाकयात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। क्या यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है? ऑलरेडी यहाँ बल्दिया का डिपार्टमेंट मौजूद है जो यहाँ पर उसका अमला मौजूद है और उसकी जो ना तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, उसका बजट भी मौजूद है। और हमें तो मालूम है कि पहले काफी अर्से पहले की बात है कि शहर में बाकायदा कुत्ता मार मुहिम चलाई जाती थी और उसके लिए बाकायदा बजट मंजूर होता था और शहर में बाकायदा ऐलान किया जाता था कि लोग अपने पालतू कुत्तों को बंद कर लें ताकि हम जो ना आवारा कुत्तों को जो ना ठिकाने लगा सकें। और इस तरह फिर वो गाड़ियां भर भर कर शहर से बाहर उन जो ना कुत्तों को यानी कि दफन किया जाता था, कुछ भी किया जाता। बुनियादी चीज है कि वो मुहिमात जो चला करती थी वो अब इस तरह से नजर नहीं आती है। बजट भी मौजूद है, अफराद भी मौजूद है। हमें तो यहाँ तक मालूम हुआ है कि जो कुत्ता मारने वाला जो डिपार्टमेंट का जो हेड था, वो जो इसका मुलाजिम था, जो उसका भी शायद इंतकाल अपने रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर किसी फर्द को नया मुकर्रर भी नहीं किया गया। इसलिए जो वो हेडाक बुनियाद पर जो ना अफराद को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब ये कि ये कुत्तों को जो ना ठिकाने नहीं लगाया जा रहा और वो जो ना शहरों के ऊपर हमलावर होते हैं। तो हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, बिलखुसूस हमारी मैडम साहबा जो आई हैं, कि इस हवाले से खुसूसी तवज्जो दें, शहरियों को इस अजाब से निजात दिलाएं, बच्चों का महफूज करें, बच्चों को गली खेलने कूदने का जो इनका जो मामला है वो डिस्टर्ब ना हो। जी, आपने सुना कि शहरियों का कहना यह है कि जो है यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कुत्तों के जो है काटने के सद्देबाब के लिए डिपार्टमेंट मौजूद होने के बावजूद जो है इसका सद्देबाब नहीं किया जा रहा है, जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जी, मीरपुर खास से मोहम्मद सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे। अब खैरपुर में सूरत हाल कितनी संगीन है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक माह के दौरान आवारा कुत्तों के काटने से 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। वैक्सीन ना मिलने पर एक बच्चा जाँ बहक भी हुआ। वहां क्या सूरत हाल है ये बताएंगे वसीम सोमरो। वसीम सोमरो, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल से। जी, मैं आपको बताता चलूं कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद खैरपुर शहर में कुत्तों को मारने की जो मुहिम है वो अब तक शुरू न हो सकी है। अगर एक माह के अंदर बात की जाए तो खैरपुर के 8 तहसीलों पीरजो गोड, नारो, सोबो, डेरो, कोडीजी और रानीपुर में
1000 से जायद कुत्तों ने बच्चों बूढ़ों को काटा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 रोज कबल कोडी जी के तहसील के गांव बोजडार वडा की 7 साल अली रजा की हलाकत हुई है। हलाकत की वजूहत यह है कि यहाँ पर जितने भी BHOs हैं, PPHI वालों हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वालों के जो ऑफिस है, वहाँ पर वैक्सीन नायाब है। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन तो नायाब होती है, अगर वैक्सीन मिल भी जाती है तो बड़े लोगों को, सियासी लोगों को, सिफारिश वाले करने वाले बंदों को मिल जाती है। गरीब आवाम को पहले तो कहा जाता है जिस आप इलाके से आए वहीं से कहीं कोई लेटर लेकर आए, उसके बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगी। यहाँ पर खैरपुर सिविल हॉस्पिटल, DHO ऑफिस खैरपुर में और जो तहसील ऑफिस जितने भी सिविल हॉस्पिटल की मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं, कोडीजी, रानीपुर, सोरा, वहाँ पर कोई भी उनको कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं हुई। गुज़िश्ता 1 माह के अंदर 1000 से जायद जो है ना कुत्तों ने बच्चों बूढ़ों को काटा है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद खैरपुर के जो म्यूनिसिपल अफसरान हैं, उसमें तहसील नारा के यूसुफ शेख और तहसील कोडीजी के मतलूब चांडियो, खैरपुर के जुल्फकार भुट्टो और पीरजोगोड के जो है नदीम जलबानी के ऊपर 20 से जायद सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में सरकार की मुद्दत में कुत्ते के काटने की वजह से 20 से जायद मुकदमे दर्ज हुए। अब तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी है और इसकी सबसे बड़ी ये अलमिया है कि दूर दराज से यहाँ खैरपुर से ये लोग आते हैं, उनको वैक्सीन की फराहमी वैक्सीन कुत्तों की काटने की नहीं मिलती, जिसकी वजह से खैरपुर के शहर में बड़ी पैमाने पर तशवीश पाई जाती है। अगर सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को देखा जाए तो सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि फौरी तौर पर कुत्तों को बांधने की मुहिम जारी की जाए, मगर यहाँ पर किसी भी जगह पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। कहीं कहीं पर होता है। महकमा बल्दियात की यह भी बड़ा ये उनके पास है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सियासी लोगों के होते हैं, कोई भी ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि कुत्तों की वो अब तक जारी ना हो सके। इस कुत्तों के डर की वजह से बच्चों ने, वालिदैन ने अपने बच्चों को घरों तक महदूद रख दिया है। कोई भी बच्चा घर से ज्यादातर नहीं निकलता क्योंकि कुत्तों की फौज, कुत्ते जो है बेयारो होकर घूम रहे हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाए जा रहे। इस हवाले से इलाका मकीनों ने भी सिंध हाई कोर्ट से यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आग पे जो अहकाम आते हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाए और जिस वजह से अपने बच्चों को वो घरों से निकाल नहीं सकते, उसको कुत्तों के खिलाफ फौरी तौर पर एक मुहिम चलाई जाए। वैक्सीन तो वैसे भी नायाब है, गरीबों के लिए तो ये नायाब ही हो सकती है क्योंकि गरीब जो है उनको बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से 7 साल बच्चा फौरी तौर पर वैक्सीन न मिलने की वजह से जाँ भाग हुआ है। जी, सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है। खैरपुर से वसीम सुमर हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे ठट्टा का, जहां रवा माह कुत्ते के काटने यानी सख्तगजीदगी के 131 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया। वहां किस तरीके से ये पूरा सूरत हाल है और जो लोकल गवर्नमेंट है सरफ नजर कर रही है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हम अमर लाल से। अमर लाल, बताइएगा सूरत हाल कितनी संगीन है ठट्टा में? सिंध भर की तरह आवारा कुत्तों की ठट्टा जिला के मुख्तलिफ शहरों में यलगार है। वहाँ राज कायम किए हुए कुत्ता गली और मोहल्लों में जो बच्चे खेलते रहते उनके ऊपर हमले करते रहते और जब बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है वहाँ इंतहाई बच्चों की हालत खतरनाक होती है। वहाँ वैक्सीन किसी टाइम पर मौजूद भी होती है, किसी टाइम पर मौजूद भी नहीं होती है। इस वक्त ठट्टा जिला के मुख्तलिफ देहातों में और शहरों में कुत्तों काटने के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे, जिसके बाद इस नवंबर के महीने में 131 से जायद केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4 से 5 ऐसे केस है जो इंतहाई सख्त और तशवीशनाक है, जिनको कराची जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं आपको ये बताता चलूं, ठट्टा जिला के जो देही इलाकों में जो बेसिक हेल्थ सेंटर कायम किए गए हैं, वहाँ पर कुत्ते काटने की ज्यादा ही वाकया हो रहे हैं। वहाँ पर जब उन बच्चों को या बड़ों को वहाँ बेसिक हेल्थ सेंटर मुंतकिल किए जाते हैं तो वहाँ पर वो वैक्सीन मौजूद ही नहीं होती है, जिसके बाद वो देहाती इलाके हैं जो शहरों तक पहुँचते उन लोगों की हालत इंतहाई खराब हो जाती है। हुकूमत सिंध तो दावे करती रहती है कि उन इलाकों में हर जगह पर हर अस्पताल छोटी हो या बड़ी हो वहाँ पर वैक्सीन मुहैया कर दी गई है। वहाँ पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग इंतहाई सख्त और मुश्किलात का शिकार है। सिंध हाई कोर्ट ने तो सख्त अहकाम भी जारी किए थे कि जहाँ भी कुत्ते काटने के वाक़यात हो वहाँ के जो सेक्रेटरी हो, यहाँ
कोई यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी, वहाँ के अमलदारों के खिलाफ केस दाखिल किए जाए। केस तो दाखिल किए जाते हैं, एफआईआर भी काट दी जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर खाली जिम्मेवारी पूरी की जाती है। वहाँ पर इंतजामिया, जो जिले इंतजामिया की बात की जाए या टाउन इंतजामिया की बात की जाए, 1 या 2 दिन तो कुत्ता मुहिम शुरू की जाती है, लेकिन अफसोस है वो सिर्फ मीडिया तक, सोशल मीडिया तक नजर आती है। 1-2 दिन के बाद वो खत्म की जाती है। इस वक्त सर्दी की मौसम शुरू हो चुकी है। पागल कुत्ते आवारे की तरह गली मोहल्ले शहरों में घूमते रहते हैं, लोगों पर हमले भी करते हैं। लेकिन हमें इंतजामिया जो बार बार दावे करती है कि उनको हम मार रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें मुहिम नजर नहीं आ रही है। अफसोस का मकाम यह है कि सिंध हुकूमत ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। दावे तो बड़ी करती है कि हम बार बार उनसे मुतालबात भी लोग कर रहे हैं कि खुदारा इन बच्चों पर रहम किया जाए। जो बच्चे जो छोटी उम्र में घर के बाहर खेल भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं निकल सकते, कुत्ते रात हो या दिन हो वहाँ घूमते रहते, इन आवारा और पागल कुत्तों को फौरी तौर पर मारने की मुहिम शुरू की जाए। सिंध के दीगर शहरों की तरह ठट्ठा में भी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये इंतहाई अहम इंसानी मामला जो है, इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के आने के बाद हम एक्सपर्ट डॉक्टर नसीमा से बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एक इंतहाई अहम इस वक्त मसले की तरफ हम बात कर रहे हैं, सदगजीदगी, कुत्ते के काटने के वाकयात जो सिंध भर में हम देख रहे हैं कि बुरी तरीके से हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज का एक ये मसला हो गया है कि बड़ी तादाद में ये केसेस और खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त एचओडी इन्फेक्शन डिजीजेस इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर नसीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नसीमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक एनजीओ है आवाज बेजुबान, उसकी फाउंडर सिद्रा कमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीमा, आपकी तरफ में आऊंगा। ये फरमाइएगा कि क्या सूरत-ए-हाल है इंडस हॉस्पिटल में इस साल के हवाले से? रवां साल कितने केसेस रिपोर्ट हुए? और सबसे बड़ी बात यह कि जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी का क्या लेवल है, क्या दर्जा है कि दस्तयाब है, इजीली है या नहीं है? जी देखिए, सिंध सूबे के अंदर तो बहुत ज्यादा केस हजारों में हो जाते हैं, लेकिन कराची के अंदर डेली 150 से 200 केसेस डॉग बाइट के होते हैं, जिनमें इंडस अस्पताल में रोजाना 30 से 50 केसेस आते हैं। और पिछले साल 7,000 केसेस हमारे पास आए हुए थे। अब देखिए, ये वैक्सीन की बात आप जो पूछ रहे हैं, ये सिर्फ वैक्सीन की हद तक नहीं रहना चाहिए। इसके इलाज में जब पेशेंट आता है कुत्ते के काट के बाद, तो फौरी तौर पे उसे साबुन और पानी से हम साफ करते हैं ताकि जरासीम ज्यादा से ज्यादा निकल आए, फिर एंटीसेप्टिक लगाकर, और फिर जख्म की नौयत को देखते हैं कि ये बहुत गहरा है या सुपरफिशियल है। और अगर बिल्कुल जो कैटेगरी 2 जिसे हम कहते हैं, WHO कैटेगरी 2, उसके लिए हम वैक्सीन का कोर्स फौरी शुरू कर लेते हैं। और अगर ये जख्म गहरा हो, जिसे हम कैटेगरी 3 कहते हैं, तो उसमें हम रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन लगाते हैं। अब मसला ये है कि दोनों रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन, जिसे हम RIG कहते हैं, और वैक्सीन, दोनों की शदीद कमी वक्तन बवक्तन होती है, ना सिर्फ शहर में, सूबे में, लेकिन पूरे मुल्क में। क्योंकि जो बेहतरीन वैक्सीन और RIG आते हैं वो इंडिया से आते हैं, और क्योंकि ये सियासती मसाइल की वजह से इसकी इंपोर्ट में काफी कमी हो जाती है। ठीक। अच्छा, ये जाहिर है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर आता होगा, उसके ऊपर वो करने की जरूरत है। मैं ये पॉइंट समझना चाह रहा था, जो फार फ्लंग एरियाज हैं जहां से लोग केसेस आते हैं, या इमीडिएटली बजाय इसकी कि फौरी तौर पे हॉस्पिटल्स को रन करने की कोशिश होती है अप्रोच करने की, लेकिन मुतासरा शख्स या मुतासरा जो इसके लवायकीन हैं, जो उसके लोग हैं, वो क्या ऐसी जो इमीडिएट आप कहेंगे कि रेमेडी क्या होनी चाहिए इससे बचने के लिए? अगर ये ऐसा हुआ है तो क्या स्टेप्स जो फर्स्ट एड के तौर पे लिए जा सकते हैं? फर्स्ट और फॉरमोस्ट, सबसे पहले बहुत ही अहम बात यह है कि जख्म को साबुन और पानी से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करें, क्योंकि साबुन की जब वायरस को लगता है तो वो वायरस
خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہوں گی کہ اگر اور کچھ نہیں تو فوری صابن پانی سے رگڑ کر زخم کو صاف کرے، دھو لیں. اچھا. پھر اس کے بعد پھر ایسے ہسپتال جائیں جہاں پر ویکسین اور امیون گلوبولن دستیاب ہو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں لائف سیونگ ڈرگز آسانی سے ملتے نہیں ہیں. اب ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو ویکسین ہمارے پاس آتی ہے وہ چائنا سے آتی ہے، NIH اسلام آباد کے ذریعے سے. اچھا. اور یہ جو مجھے وہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل اکرام بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ویکسین یہ چائنا سے ویکسین جو آتی ہے یہ بہت ان کے پاس ٹھیک ہے. یعنی لوکل جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی اویلیبلٹی ہے اس کو حکومت ذرا دیکھے. وقت کی تھوڑی کمی ہے. اس وقت سدرا قمر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آواز بے زبان کی فاؤنڈر ہیں، اور ایسے آوارہ کتوں کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے گلی محلے میں جو گھومتے ہیں، پھر ان کی نسبندی کی جاتی ہے تاکہ ان کی افزائش جو ہے وہ نہ ہو. کتنے کیسز آپ نے سکسیسفلی اس سال کیے ہیں ان کی جو ویسیکٹمی ہے اس طرح کے کتوں کی، آوارہ کتوں کی؟ سدرا. السلام علیکم. عمران آواز بے زبان بیسکلی ان کا ایک ایریا کو لیتی ہے ایک پروجیکٹ فیز میں، اور سنس اٹس اسٹوڈنٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہم لوگ ایک ایریا کے 70% ڈاگس کو نیوٹر کرتے ہیں، ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، بیکاز WHO ریکمینڈز ریبیز ایلیمینیشن تھرو ون ہیلتھ اپروچ، جس کے تحت آپ کو 70% ڈاگس کسی بھی ایریا کے ویکسینیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹو ایلیمینیٹ ریبیز فرام دیٹ ایریا. اگر ہم ایک ایریا کے 70% ڈاگس کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں تو ان میں ہرڈ امیونٹی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس ایریا میں ریبیز ہوگا ہی نہیں. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایریا پورا کلین کر دیا، ہم نیکسٹ ایریا پہ موو آن کر چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس مس فاطمہ جو کہ AC ہیں نازم آباد میں، ہی از ہیلپنگ اس ود دس پروجیکٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ناؤ اسٹارٹ اٹ ان نازم آباد ایز ویل. ٹھیک ہے جی. وقت کی کمی اس وقت آ رہی ہے، لیکن انتہائی اہم ٹاپک ہے. ہمارے دونوں جو پینلسٹ ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. ہیڈ لائنز کی طرف چلیں گے اور ہیڈ لائنز کے بعد بھی آج کے اس ڈسکشن کو ہم آپ تک جاری رکھیں گے. ایک بار پھر ملیں گے جسٹ ہیڈ لائنز کے بعد.